Hello everyone, welcome to my channel DSC, that is Dynamic School of Excellence. This is your educator Ruby Gupta, and today we are going to discuss class 10 English, chapter 2, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Now we have already discussed who Nelson Mandela was and uh, how he had fought for the freedom and equality of the Black people in South Africa. We also discussed the apartheid system and so many other points. Now let's move ahead, and now we are moving to the second part of the chapter. Now this part starts with the massive display of military power on the oath taking ceremony. Now what is this military power? Usually what happens that whenever this kind of oath ceremony takes place, so at that time the main thing is that the country has to show its power, and power is shown in terms of military mein basically we have to understand this military power in terms of that army, navy and air force. So these are the three important national power defense system of any country. So basically on this oath taking ceremony there was a massive display, there was a spectacular array, an impressive display that is colorful and attractive of South African jets, helicopters, and troop carriers. Now, jets and helicopters, but what is troop carrier? Troop is basically a small team of soldiers, or team of soldiers, or you can say, the Air Force. They could be from the Air Force or Navy. So, they are carried. So this kind of thing you can see here in the picture. This is a troop carrier that can carry, the soldiers to the place where they are deployed. मतलब जहाँ पे उन्हें deploy किया जाता है, जहाँ पे उन्हें लड़ने के लिए जाना है, उस जगह पे उन्हें ले जाया जाता है. Troop मतलब सेना की एक टुकड़ी. So ये troop carriers है. उसके अलावा क्या था, इस तरह से जो जेट्स हैं वो आसमान में अपने अलग अलग they were displaying their power. They were flying over this Pretoria, that Union building. We already know this Union building is that same building where this oath taking ceremony was going on. तो उस दिन जब नेल्सन मंडेला अपनी प्लेज ले रहे थे, ओथ ले रहे थे, तो उस दिन एक पूरा जो साउथ अफ्रीका का जो डिफेंस सिस्टम है, जिसमें उनके जो जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स और इस तरह के और जो ट्रूप कैरियर्स हैं जो सेना को लेके जाते हैं, सेना की टुकड़ी को, तो वो सब वहां पे आसमान में अलग अलग डिस्प्लेज दिखा रहे थे. बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही कलरफुल सा एक नजारा था, वो देखने वाला था. अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि दे वर शोइंग देयर प्रिसीजन, पिन पॉइंट प्रिसीजन. मैं यहाँ पे ये टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज है जिसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो यू आर एबल टू आंसर देम वेरी वेल. पिन पॉइंट प्रिसीजन, प्रिसीजन क्या होता है कि किसी चीज को बहुत ही बारीकी से दिखाना. दे वर शोइंग दैट जरा सी भी गलती नहीं होती है. जिस तरह से वो डिस्प्ले कर रहे थे सारी चीजों को, बहुत ही बेहतरीन था वो. दूसरी चीज के दिस वाज आल्सो टू शो देयर मिलिट्री फोर्स. वो ये दिखाना चाहते हैं कि साउथ अफ्रीका हैज दैट पावर, इट हैज मिलिट्री पावर आल्सो. उसके पास आर्मी, नेवी, एयर फोर्स सब कुछ है. अदर थिंग वाज that a demonstration of the military's loyalty to democracy and to a new government that had been freely and fairly elected. अब यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि जो सारी चीजें हो रही हैं आसमान में, जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं और ये सब जो उड़ रहे हैं, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? दो सिग्निफिकेंस है मेनली, कि वो अपनी फोर्स दिखा रहे हैं, मिलिट्री फोर्स दिखा रहे हैं, ये भी दिखा रहे हैं कि वो कितने प्रिसाइसली काम करते हैं, कितनी बारीकी से हर चीज को करते हैं. और दे आर ऑल्सो डिस्प्लेइंग देयर लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, कि हम अपनी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसके लिए लॉयल है. तो ये इसका सिग्निफिकेंस है. तो नाउ चाहे वो ब्लैक प्रेसिडेंट है नेल्सन मंडेला, बट स्टिल दे आर लॉयल टू दैट न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट. So this is the significance. There is one more word here, that is chevron. Finally, a chevron of Impala jets. अब ये होते हैं Impala jets इस तरह से. These are the Impala jets. ये भी fighter planes होते हैं. They are used in the air force. तो ये जो Impala jets हैं, ये भी आसमान में क्या कर रहे थे?
they were actually making the pattern. ये they were emitting colorful smoke. तो ये colorful smoke emit कर रहे थे and they were making the V pattern. ये जो chevron है, chevron इसका pronunciation है, इस तरह से V pattern बना रहे थे ये. And V is mainly for victory. So V symbolizes victory here. And the other thing is that this why, अब ये भी question है कि ये black, red, green, blue, gold ये ही colors क्यों थे? क्योंकि जो South Africa का जो flag है ये उसके color है. So that's why they were emitting these colors there. So this is the whole explanation. Okay, so this was the oath taking ceremony, massive display of this military force. They were proving their loyalty, or they were also showing these various the spectacular display of jets, aeroplanes, and troop carriers. Okay, so let's move on to the next part. Now there is one more thing कि military generals ने क्या किया उस दिन, you know, ये तो हो गया, हमने आसमान की बात करी कि भाई वहाँ पे aeroplanes और helicopters and all were roaming, they were roaring मतलब basically उनकी आवाज बहुत तेज आ रही थी क्योंकि काफी नीचे उड़ रहे थे वो. अब the next question is about the military generals, that what did they do and how did their attitude change and why. Now this is again a very important question. Now this shows that this military general, you know, क्या किया उन्होंने. सबसे पहले तो they saluted Nelson Mandela, and when they saluted जो military generals हैं, जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जो तीनों ही ये विंग्स होते हैं मिलिट्री के, तो इनके जितने तीनों जनरल्स ने मंडेला को सल्यूट किया. एंड सेकंड थिंग they did was they pledged their loyalty. उन्होंने भी उस दिन ओथ ली कि we will be loyal to our government as well as to the president of our country. So this is the thing. ये वही लोग हैं जिन्होंने मतलब they would have arrested, अगर apartheid system होता वहां पे, so they would have arrested Mandela at that time. So now those people जिन्होंने एक टाइम पे टॉर्चर किया था ब्लैक पीपल को, मंडेला को भी काफी टॉर्चर किया गया था, आज वही लोग मंडेला को सल्यूट कर रहे हैं एंड वो ओथ भी ले रहे हैं कि yes we'll be loyal to you. So you know, this is what they have done. अब ये जो चेंज है ये क्यों आया है उनपे. Now this is again a very tricky question कि जिसका आंसर बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, but still we'll try that. तो why this change occurred in that? इसका रीजन सबसे पहले तो यही था कि apartheid system had ended. अब there was no apartheid system, so that was there. But does it mean कि सिर्फ apartheid system खत्म होने से उनके एटीट्यूड में चेंज आया था? तो फिर तो ये हो गया कि they were you know not showing their loyalty genuinely. क्या ऐसा था? नहीं. मंडेला wants to prove here कि सिर्फ apartheid system खत्म हो गया है इस वजह से they were showing their loyalty and all. No, it was not like that. He also thinks कि जो struggle की थी वहाँ के लोगों ने, you know, the people, the way they had sacrificed their lives and so many other things, their comfort, money, family, everything. So that also brought change in the mindset of many people. तो ये भी एक रीजन था कि जिसकी वजह से आज इन लोगों में ये चेंज आया है कि जो वाइट पीपल हैं वो भी आज काफी मतलब चेंज्ड है, यू नो, देयर एटीट्यूड हैज चेंज्ड बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि उन्होंने देखा है कि किस तरह से बहुत सारे लोगों ने, उसमें वाइट भी शामिल थे, जिन्होंने स्ट्रगल किया था अगेंस्ट द अपार्टाइड सिस्टम. थर्ड रीजन कुड बी दैट मंडेला थिंक्स कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally than to the human heart than its opposite. So Mandela thinks कि love is a very natural thing to people. अगर लोगों को hate करना सिखाया जा सकता है, क्योंकि कोई पैदा नहीं होता है कि जन्म से ही कि you know with this hatred, the feeling of hatred. So this love also can be taught to them. So I think now they have learned, the white people have learned to love, you know, the humanity, to love human beings. So these are the reasons which you can write. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट. ये काफी कंफ्यूजिंग पॉइंट दिया हुआ है बुक में कि उस दिन दो नेशनल एंथम्स हैं जो गाए गए थे.
like the black were singing one national anthem and the white were singing another national anthem. क्यों? जब country एक है, सब combine हो गए हैं, तो why were they singing two national anthems? तो उसका एक reason है जो आपको पहले समझना है. एक एक ये वाला था जो लॉर्ड ब्लेस अफ्रीका, ये जो नेशनल एंथम था, दिस वाज एक्चुअली द एंथम ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. नाउ दिस वाज द ऑफिशियल एंथम. दूसरा जो एंथम था वो था डाई स्टेम, ये वाइट पीपल का एंथम था, द कॉल ऑफ साउथ अफ्रीका. सो ड्यूरिंग द अपार्टाइड सिस्टम वाइट पीपल यूज्ड टू सिंग दैट. लेकिन आज क्या हो रहा था ऑन द ओथ टेकिंग सेरेमनी, कि आज उल्टा हुआ काम, मतलब इट वाज कंप्लीटली वाइस वर्सा. द विजन ऑफ व्हाइट्स सिंगिंग दिस वन, यू नो, एंड ब्लैक्स वर सिंगिंग डाई स्टेम. तो अब क्या हुआ कि जो एंथम पहले व्हाइट गाते थे, डाई स्टेम जो था, नाउ इट वाज संग बाय द ब्लैक पीपल. And the national anthem, which was sung by the African National Congress earlier, that was sung by the white people. तो इस तरह से यहाँ पे ये change has taken place. तो डाई स्टेम जो व्हाइट का नेशनल एंथम था वो ब्लैक गा रहे थे, और लॉर्ड ब्लेस अफ्रीका जो ये वाला नेशनल एंथम था, जो ब्लैक का एंथम था, वो इट वाज संग बाय द व्हाइट पीपल. तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्वेश्चन कई बार आता है. तो पहले तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कि भाई दे हैव एक्सेप्टेड ईच अदर. हालांकि उनको अभी उसके मीनिंग्स नहीं पता है, क्योंकि their language is different and everything, but still they will learn it very soon. तो उसमें लिखा हुआ है बुक में कि this neither group knew the lyrics of the anthem. lyrics क्यों नहीं पता थे? क्योंकि वो एक दूसरे की लैंग्वेज का एंथम गा रहे थे, एंड ये वो एंथम था they once despised, मतलब they hated. एक दूसरे के नेशनल एंथम को वो हेट करते थे. तो now it is actually not the same thing. Now the scenario is completely changed. तो ये शो करता है एक्सेप्टेंस, मिंगलिंग ऑफ बोथ द रेसेस, कि अब जो दो रेसेस हैं, द ब्लैक एंड द व्हाइट, अब वो मिंगल हो गए हैं, आपस में मिल गए हैं. दे हैव एक्सेप्टेड ईच अदर, एंड नाउ दे आल्सो हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी. सो दिस इज इट्स सिग्निफिकेंस दैट यू कैन टॉक अबाउट. तो ये है नेशनल एंथम का significance कि why there were two national anthems sung by the black and the white. उसके बाद आते हैं एक और चीज जो बुक में बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है, कि how does Mandela describe the system of government in his country. अब जो system of country है वो first decade में अलग था, और in the final decade of 20th century it was completely different. तो again we have to go into the history a little bit. अफ्रीका में हुआ था एक एंग्लो बोर वॉर, एंड दिस वॉर वाज फ्रॉम 1899 टू 1902. तो 1902 जो है ये क्या है, फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी. डेकेड क्या होता है? अ पीरियड ऑफ 10 years, दैट इज अ डेकेड. तो ये जो फर्स्ट डेकेड था इसमें एंग्लो बोर वॉर हुआ, जिसमें द ब्लैक पीपल वांटेड फ्रीडम, क्योंकि ये जो व्हाइट पीपल हैं वो तो काफी सालों से मतलब दे वर रूलिंग द ब्लैक. तो अब ये जो एंग्लो बोर वॉर था इसमें व्हाइट पीपल वन, दे गॉट द विक्ट्री. सो आफ्टर दैट दे स्टार्टेड दिस अपार्टाइड सिस्टम, और ये जो रेशियल डोमिनेशन शुरू हुआ, द व्हाइट स्टार्टेड डोमिनेटिंग द ब्लैक, एंड दे गेव वेरी इनह्यूमन ट्रीटमेंट टू दीज पीपल. लेकिन क्या ये सिचुएशन सेम थी? नहीं, बिकॉज वी हैव सीन 1994. ये क्या हुआ 1994? दिस इज द लास्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी. तो ये 20वीं सदी का एक आखिरी डेकेड था. उसमें क्या हुआ कि पूरा सिस्टम चेंज हो गया. द प्रीवियस सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड, पूरा पलट गया, और इट वाज रिप्लेस्ड विद अ न्यू सिस्टम वेयर everybody got equal rights, opportunities, and South Africa became the democratic republic nation. So this is how the system changed. तो पहले एंग्लो बोर वॉर हुआ जिसमें व्हाइट पीपल वन, मतलब जीत गए वो, एंड दे स्टार्टेड दिस रेशियल ट्रीटमेंट, बहुत डोमिनेट करते थे, ब्रुटैलिटी, ऑपरेशन, ये सब हम देख चुके हैं ऑलरेडी. और फाइनली एक अच्छी, एक इक्वल, जहाँ पे इक्वालिटी है, इक्वल ट्रीटमेंट, अपॉर्चुनिटीज हैं लोगों के लिए, ऐसी एक सोसाइटी एस्टैब्लिश हुई इन 1994. तो ये है हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट.
उसके बाद बात करते हैं these people। अब यहाँ पे ये जो फोटोज हैं ये वो लोग हैं who sacrificed their life for the freedom of the black people। इसमें कुछ white भी थे, black थे, सभी तरह के लोग थे। Those who really wanted Africa to have justice, peace and equality। Mandela says कि depths of oppression can create such heights of character। अब इसका मतलब क्या है? Depth of oppression, oppression मतलब the kind of brutality, the kind of atrocities होते हैं अत्याचार। So these atrocities were projected on these people। So these atrocities now were somehow um, proved to be a blessing। कैसे? Because these atrocities, इनके ऊपर जितना जुल्म किया गया, जितने अत्याचार किए गए, what happened ultimately that these people came up with the best character they had। So एक सिंपल सी चीज आपको भी पता है कि अगर हम बहुत ज्यादा सफर करते हैं, बहुत ज्यादा कई बार हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, so those people come up with the best character because they learn how to fight, how to face those situation। तो एक strong personality बन जाती है। and the same thing happened with these people। तो ये जो लोग हैं इन्होंने जितना सहन किया, जितना सफर किया, especially talking about the black people, so they have come up with the extraordinary courage, wisdom and generosity। courage हिम्मत, wisdom मतलब एक practical knowledge जो इनमें थी, और generosity kind heartedness, बहुत ही उदार थे ये। और उसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है कि ब्लैक पीपल अफ्रीका में मेजोरिटी में थे, एंड डिस्पाइट बीइंग इन मेजोरिटी दे डिड नॉट आस्क द वाइट टू गो अवे। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमारी कंट्री छोड़ के चले जाओ, उन्होंने उनको भी इक्वल राइट्स दिए, उन्होंने उनको भी कहा कि आप यहाँ पे रूल करो, एंड दे जस्ट वांटेड देयर फ्रीडम आल्सो। तो इस तरह से इक्वालिटी एस्टैब्लिश करके उन्होंने अपने जो ऑप्रेसर्स थे, जो उन्हें इतना तंग करते थे, उन्हें भी वहां पे रखा और सबको साथ मिलके अब आगे बढ़ना था। So this is actually the wisdom, the generosity which these people have shown। और ये जो ऐसे लोग हैं शायद दोबारा ना मिले। तो इनकी जो ये महानता है, ये जो जेनरोसिटी है, ये सब ऐसे ही नहीं आ गई। इसके लिए क्या था कि बहुत ज्यादा इन्होंने सफर किया है। जो वो डेप्थ है यहाँ पे, जो वो एक गहराई है, दैट इज टू मच। तो जितना इन्होंने सफर किया है उतना ही ये अच्छे और निखर के आए हैं। These are the people who have come up with the best character one can ever have। So this we have to understand। तो ये Oliver Tambo, Walter Cicero, so these are the people, great people that Mandela does not forget to thank। अब एक और क्वेश्चन आता है कि why does he feel pain? Mandela feels pain today। क्यों वो पेन फील कर रहा है when he remembers these people? तो मंडेला feels pain for them क्योंकि he is not able to thank them because they are no more। अब वो नहीं है, they are not alive। and other thing is that they are not able to see what their sacrifice have brought to them। तो अब वो नहीं है वो चीजें देखने के लिए जो जिसके लिए उन्होंने इतने sacrifices किए थे। तो this is the reason that he is feeling pain in his heart। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर ये 2 मार्क्स में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस तो यू कैन आंसर देम वेल। मंडेला टॉक्स अबाउट वन मोर पॉइंट एंड दैट इज करेज। आपको ये पॉइंट्स में ही याद रखने हैं, इसी के हिसाब से ही क्वेश्चंस भी आते हैं। तो व्हाट इज करेज? करेज क्या हम जैसे हम हिम्मत कहते हैं, जब हमें डर नहीं लगता है और हम सामने उस चीज को फेस करने के लिए, उस रिस्क को फेस करने के लिए तैयार रहते हैं। बट ही सेज दैट डज इट मीन कि अगर आप करेजियस हो उसका मतलब आप में कोई डर ही नहीं है, आपको किसी चीज से डर ही नहीं लगता है? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। डर लगता है, सबको लगता है, एंड इट शुड बी देयर, बट व्हेन वी गेट ट्रायम्फ ओवर इट, ट्रायम्फ मतलब विक्ट्री, व्हेन वी गेट ट्रायम्फ ओवर इट, व्हेन वी कॉन्कर अवर फियर, सो दीज आर द डिफरेंट वर्ड्स यू कैन रिमेंबर। कॉन्कर भी जीत हासिल करना। So when we conquer that, अपने उस डर पे जब हम काबू पा लेते हैं, जीत हासिल कर लेते हैं, वो करेज है। That is the real brave or courageous person।
So Mandela is giving this definition. तो यहाँ पे मंडेला ने ये एग्जाम्पल क्यों दिया है? इन टर्म्स ऑफ द ब्लैक पीपल. Black people were also very much scared. They were also afraid of all this torture and all the kind of subjugations they had. तो उनमें भी डर था. उन्हें भी डर लगता था कि क्या होगा अगर हम अपनी फैमिली लूज कर देंगे, अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देंगे अगर हमने आवाज उठाई तो. लेकिन उस डर को उन्होंने कंट्रोल किया. दे कॉन्कर्ड दैट फियर एंड फाइनली दे रेज्ड देयर वॉइस एंड इवन दे सैक्रिफाइस्ड. फिर उन्हें डर नहीं लगा. उनमें हिम्मत आ गई. Okay, because they were fighting for the great cause. तो this is courage. तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको पहले ये एक्सप्लेनेशन लिखनी है और उसके बाद एग्जाम्पल देना है. The black people, how they conquered over their fear. Next, man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. Now this is human goodness. It's a flame that can be hidden but never extinguished. तो इंसान की जो अच्छाई होती है वो एक फ्लेम की तरह होती है. वो फ्लेम कभी भी पूरी तरह से बुझ नहीं सकती. मतलब यू कैन नॉट पुट इट आउट. हाँ, हो सकता है वो कुछ टाइम के लिए छुप जाए. Now why Mandela is saying this? Mandela is talking about this in terms of the white people. तो Mandela here talks about his experience in the present. जब वो present में थे तो he had seen his grimmest time. Grimmest मतलब the saddest time. जब सबसे ज्यादा उन्होंने difficulties face की थी, उस टाइम की बात कर रहे हैं. तो in this grimmest time, what happened? That he was pushed to his limits. Not only he, but his comrades also. They were pushed to their limits. मतलब उन्हें इतना ज्यादा torture किया जाता था कि जब तक वो pain को बर्दाश्त करते करते पूरा बेहोश ना हो जाए. मतलब they completely used to get faint. So this kind of thing happened there. लेकिन मंडेला को फिर भी ये लगा कि yes, still he could see the glimmer of humanity in one of the guards. मतलब उन्होंने देखा कि उनमें से जो टॉर्चर कर रहे थे और जो वहां पे और जो गार्ड्स भी थे उसमें एक की आंखों में उन्होंने एक ह्यूमैनिटी देखी. कि एक मानवता, एक सिंपैथी. सो देन ही रियलाइज्ड कि बस हाँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं अच्छाई है. सभी में अच्छाई होती है, बस कई बार वो छुप जाती है. एंड दैट was enough to reassure me and keep me going. मतलब keep me going मतलब कि he was able to tolerate that torture. कि नहीं, कहीं ना कहीं अच्छाई है लोगों में. तो वो जो गुडनेस की फ्लेम है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती है. मतलब ह्यूमन बीइंग्स आर जेन्युइनली गुड. दिस इज व्हाट नेल्सन मंडेला थिंक्स. कि अच्छाई हम सब में होती है, बस कई बार उस अच्छाई को हम सप्रेस कर देते हैं, कई बार भुला देते हैं, बट फिर भी वो कभी भी मर नहीं सकती है. तो कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है. दिस इज व्हाट मंडेला सेज. तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं अपना पार्ट 2, नेल्सन मंडेला. This is the